Hello students, welcome to Sri Radha Vallabh Academy, and I am here to explain the class 8th science first chapter, crop production and management. So students, in this chapter we are going through the crop production and management, means how we will produce the crop and how we will do its management. Okay, crop production, though first of all I would like to tell you that what do you mean by the term crop. Okay, so as in NCERT it is already mentioned the definition of crop, and here is the definition of crop. You can see when the plants of the same kinds are cultivated once on a large scale is called a crop. Okay, means when we will grow the same kind of plants, okay, same kind of plants cultivated in a large scale. Okay, so a large scale, in large quantity, these same kind of plants are called as crop. Okay, so I think you all of you reached. I think you all have gone to your hometown, okay, and you have seen the various types of fields around you. Okay, means you can see the सरसों का आपने खेत देखा होगा, गेहूं का खेत देखा होगा, है ना, चावल के खेत देखे होंगे. वो सारे सब क्या हैं, आपको एक जैसे प्लांट्स और एक ही हाइट पे आपको सारे प्लांट्स सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ओके, सो दीज सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वंस प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म व्हाट इज़ क्रॉप. सो एक्चुअली बेटा ये क्रॉप जो है, हम इस जो टर्म को है, वी कैन यूज़ दिस टर्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. Okay, so first of all I would like to tell you that what do you mean by agriculture. So actually students, the science of farming including cultivation of the soil and rearing of animal is called agriculture. Okay, means farming including cultivation of the soil means soil का cultivation और animals की rearing. ठीक है, इन दोनों को हम मिला के बोलेंगे एग्रीकल्चर. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई किसान है, उसके यहाँ पे जानवर भी होते हैं, बैल होती हैं, गाय होती है, वो उनका प्रॉपर तरीके से उनका मीन्स टेक केयर करते हैं. ठीक, और वो उनके टेक केयर क्यों करते हैं, ताकि वो अपने खेतों में ईजिली फसल को उगा सके, है ना. तो यही सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी, एग्रीकल्चर. ओके, क्या कहलाएगा आपका, एग्रीकल्चर. तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ओके, so as the word is indicated agriculture, so I would like to tell you the meaning of agriculture. Okay, actually beta, agriculture term is derived from the Latin two word, that is ager means field and culture cultura means cultivation, means field cultivation. Okay, so I've told you that earlier, agriculture means the science of farming including cultivation of the soil and rearing of animal is called its agriculture. Okay, so I hope you understood the term agriculture. Now we will just go through the next topic, that is horticultural crop. Okay, so horticultural crop means what, the large cultivation of vegetable, fruits and flower plants. means किसी भी, जैसे आपने देखा होगा किसी के खेत में, जैसे आप गेहूं के खेत में गए तो आपने ये तो नहीं देखा होगा ना कि गेहूं के खेत में 2-4 प्लांट ही आपके लगे हों. वो कई बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा तादाद में एक साथ लगे रहते हैं. ठीक, तो मीन्स दिस इज़ अ लार्ज कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स. मीन्स लार्ज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप. ठीक, जैसे गेहूं का खेत, ठीक, और आपके वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स और आपके फ्लावर प्लांट्स, इन सब का लार्ज अमाउंट में जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे, उस क्रॉप्स को हम कहेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, वी विल जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट. स्टूडेंट्स, you know the crop produced in India, they mainly are cereal crops, fiber crops, pulses and oil seeds. Okay, cereal crops included rice, wheat, maize. They are the most commonly grown cereal crops. Okay, so I'll tell you the types of crops that are grown in India. Okay, cereal or grain crops include, as I told you, that rice, wheat, maize, barley, ragi. Okay, fiber crops include jute and cotton. पल्सेस means दाल्स. ओके, दाल जो हम खाते हैं ना, मीली
जैसे अरहर की दाल, ओके, चने की दाल. सो और इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट लेग्यूम्स, ओके. और व्हाई वी कॉल द लेग्यूम्स, एक्चुअली बेटा व्हेन यू विल गो टू द हायर क्लासेस, सो जितने भी आपके पल्सेस के प्लांट्स होते हैं, इनके जो रूट्स जो होते हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उन रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके. और उसके अंदर आपका एक पिगमेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन, ओके. सो दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, ओके. and that's why they are comes in the category or in the family of legumes. दाल के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स. तो एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्राम्स, पीस, बीन्स, ओके. नेक्स्ट टाइप्स की जो क्रॉप है वो है ऑयल सीड्स क्रॉप, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन. आपने सुना होगा ना, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ओके, सोयाबीन तेल, ये सारे आपके क्या हैं, ऑयल सीड्स क्रॉप हैं. नेक्स्ट है रूट क्रॉप. रूट क्रॉप मीन्स जिनमें हम जड़ें उगाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, आपने शक्करकंद, ये क्या है, आपकी जड़ है. कैरेट, ये भी क्या है, आपकी जड़ है, ठीक. नेक्स्ट है ट्यूबर क्रॉप्स. ट्यूबर क्रॉप्स मीन्स दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट and we'll just modified form of just stem, okay, that we called that example of tuber crops are potato, tapioca, ginger, etc. okay. sugar crop, जैसे कि शुगर क्रॉप आपकी शुगर केन, जो हम ऐसी क्रॉप जो हमें शुगर देती हों, जैसे शुगर केन, बीट रूट, एट्सेट्रा, ओके. नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप. जैसे आप जब हिली रीजन्स पे आप गए हों तो वहाँ आपने देखा होगा चाय के बाग, कॉफ़ियों के बाग, ठीक है, रबर, कोकोनट, ये सारे क्या हैं, आपके टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं जो हम मेनली अपने इंडिया में उगाते हैं, ठीक. तो जैसे आपने देखा होगा बेटा, मैंने आपको सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बताए, बट उनके भी क्या हैं, अपने अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होते हैं, ठीक. जैसे जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं वो जनरली हमें क्या देते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो दे विल प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, ओके. पल्सेस की अगर हम बात करें तो पल्सेस आर रिचर इन प्रोटीन्स, एंड कोकोनट, मस्टर्ड, सल्फर सीड्स, दे आर प्रोवाइड अस ऑयल और फैट्स, ओके. यू नो स्टूडेंट्स, इन इंडिया India produces about 200 million tons of wheat and rice to feed its more than 1 billion people, okay. So I'll just give you this idea to your knowledge, okay. And we have already discussed about the horticultural crop. So I've told you the large cultivation of the vegetable, fruits and flowers, these are known as horticulture. So basically beta, horticulture is derived from two words, hortus. Hortus means garden and culture means cultivation, okay. सो वेजिटेबल क्रॉप्स में भी आप एग्जांपल तो आपको पता ही होंगे, बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, स्पाइनिश, ओनियन, रेडिश, एटसेट्रा, ओके. फ्रूट्स का अगर हम देखें कल्टीवेशन, ऑरेंज, बनानास, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, मैंगो, पपाया, एटसेट्रा. डेकोरेटिव प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आपका कैक्टस, बोगनविलिया, ये सब क्या हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लावर्स की भी खेती होती है, जैसे गुलाब की खेती, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, बाल्सम, एटसेट्रा, ओके. Now beta, we will just go through, as in NCERT it is already mentioned that in India crops are divided into two categories, means these are according to the seasons, okay. So we will call the in our country there are two main crop season, okay. First one is Rabi season and second one is Kharif season. So on the basis of this season we are having the two types of crops, that is Rabi crops and Kharif crops, okay. So I will discuss this topic in a means that is now the first I will tell you the what do you mean by Kharif crop and Rabi crop. As in NCERT beta, this is already mentioned that I will tell you Kharif crop. So the crop which are sown during rainy season, okay. The crop which are sown during rainy season in India, these are called Kharif crop, okay. These are called Kharif crop, ठीक. एंड मीन्स जो क्रॉप्स हमारे मेनली बारिश के टाइम पे आती हैं उनको हमने बोला है खरीफ क्रॉप्स. जैसे कि एग्जाम्पल मीन्स खरीफ क्रॉप सीज़न कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, ठीक. और खरीफ क्रॉप्स को हम एक्चुअली समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक. मीन्स उस टाइम में क्या है ना, ये सारी गर्मी वाला टाइम रहता है, तो इसलिए हमने क्या कहा है, इसको खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप्स भी कहा है.
खरीफ क्रॉप्स का जो बिगनिंग सोन टाइम होता है, सोन मीन्स बोना, खरीफ क्रॉप्स को जब हम बोते हैं तो वो कब से स्टार्ट होता है, जून जुलाई, मीन्स दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन। और हम उसको हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट मीन्स हम उसको काटते कब हैं, फसल को काटी कब जाती है, तो एट द एंड ऑफ द मानसून, दैट इज सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद करने चाहिए, और ये बेसिकली आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप, ठीक। तो इट इज़ ऑलरेडी मैंशन दैट पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ओके। सो खरीफ क्रॉप आपको समझ में आया। खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज समर सीजन क्रॉप, ओके, समर क्रॉप, एंड दिस इज द क्रॉप विच आर सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल्स आपको पता है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी क्रॉप की। तो रबी क्रॉप विच आर सोन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप, ठीक है। इसको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों विंटर क्रॉप कहते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली बेटा द रबी क्रॉप सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, मीन्स ये स्टार्ट कहाँ से होता है, अक्टूबर नवंबर से, मीन्स सोन, उसका सोन टाइम जो है, मीन्स बोने का जो टाइम है वो कब है, अक्टूबर से, नवंबर से, और उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च और अप्रैल में, ठीक। तो इसलिए मार्च अप्रैल में क्या है, थोड़ा थोड़ा मीन्स क्या है, ये विंटर टाइप का टाइम रहता है, मतलब फेब मार्च में, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, विंटर क्रॉप्स। तो आई होप यू नो, यू अंडरस्टूड वेल दैट व्हाट आर रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ठीक। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, रबी क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप आपका है विंटर क्रॉप, और खरीफ क्रॉप आपका क्या है, समर क्रॉप, ठीक। आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो यू जस्ट गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स नाउ।